जरमिया 9 चैप्टर 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे। जरमिया 9 चैप्टर 10 चैप्टर पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, इन वचनों के ऊपर अपना उजियाला दे ताकि इन वचनों के भेद हम समझ पाए और हमारे जीवन के अंदर का सफाई हो सके और हम परमेश्वर को चाहिए वैसा जीवन जी सके। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुनो और कबूल कर मेरे पिता। आमीन आमीन आमीन। चैप्टर 9 Introduction. The prophet bewails the manifold sins of his people and their judgments. First verse से पढ़ेंगे। Oh that my head were waters and mine eyes a fountain of tears, that I might weep day and night for the slain of the daughter of my people. Oh that I had in the wilderness a lodging place of wayfaring men, that I might leave my people and go from them. For they be all adulterers and an assembly of treacherous men, and they bend their tongues like their bow for lies, but they are not valiant for the truth upon the earth. For they proceed from evil to evil, and they know not me, saith the Lord. Take ye heed every one of his neighbor, and trust ye not in any brother, for every brother will utterly supplant, and every neighbor will walk with slanders. And they will deceive every one his neighbor, and will not speak the truth. They have taught their tongue to speak lies, and weary themselves to commit iniquity. Thine habitation is in the midst of deceit, therefore deceit. They refuse to know me. Through deceit they refuse to know me, saith the Lord. Therefore thus saith the Lord of hosts, behold, I will melt them and try them. For how shall I do for the daughter of my people? Their tongue is as an arrow shot out, it speaketh deceit. One speaketh peaceably to his neighbor with his mouth, but in heart he layeth his wait. Shall I not visit them for these things? Saith the Lord. Shall not my soul be avenged on such a nation as this? For the mountains will I take up a weeping and wailing, and for the habitations of the wilderness a lamentation, because they are burned up so that none can pass through them. Neither can men hear the voice of the cattle. Both the fowl of the heavens and the beasts are fled, they are gone. And I will make Jerusalem Cheops and a den of dragons, and I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant. Who is the wise man that may understand this? And who is he to whom the mouth of the Lord hath spoken, that he may declare it? For what the land perisheth, and is burned up like a wilderness, that none passeth through. And the Lord saith, because they have forsaken my law which I set before them, and have not obeyed my voice, neither walked therein, but have walked after the imagination of their own heart, and after Baalim, which their fathers taught them. Therefore thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will feed them, even this people,
with warm wood and give them water of gall to drink. I will scatter them also among the heathen, whom neither they nor their fathers have known, and I will send a sword after them till I have consumed them. Thus saith the Lord of hosts, consider ye, and call for the mourning women, that they may come, and send for cunning women, that they may come, and let them make haste and take up a wailing for us, that our eyes may run down with tears, and our eyelids gush out with waters. For a voice of wailing is heard out of Zion. How are we spoiled? We are greatly confounded, because we have forsaken the land, because our dwellings have cast us out. Yet hear the word of the Lord, O ye women, and let your ear receive the word of his mouth, and teach your daughters wailing, and every one her neighbor lamentation. For death is come up into our windows, and is entered into our palaces, to cut off the children from without, and the young men from the streets. Speak, thus saith the Lord, even the carcasses of men shall fall as dung upon the open field, and as the handful after the harvest man, and none shall gather them. Thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, that I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will punish all them which are circumcised with the uncircumcised, Egypt and Judah and Edom and the children of Ammon and Moab, and all that are in the utmost corners that dwell in the wilderness, for all those nations are uncircumcised, and all the house of Israel are uncircumcised in the heart. Chapter 10. Great disparity between God and idols. The people warned for a removal, their desolation lamented. First verse से पढ़ेंगे. Hear ye the word which the Lord speaketh unto you, O house of Israel. Thus saith the Lord, learn not the way of the heathen, and be not dismayed at the signs of heaven, for the heathen are dismayed at them. For the customs of the people are vain. For one cutteth a tree out of the forest, the work of the hands of the workmen with the axe. They deck it with silver and with gold. They fasten it with nails and with hammers, that it move not. They are upright as the palm tree, but speak not. They must needs be born, because they cannot go. Be not afraid of them, for they cannot do evil, neither also is it in them to do good. For as much as there is none like unto thee, O Lord, thou art great, and thy name is great in might. Who would not fear thee, O King of nations? For to thee doeth it appertain. For as much as among all the wise men of the nations, and in all their kingdoms, there is none like unto thee, but they are altogether brutish and foolish. Thus talk is a doctrine of vanities.
silver spread into plates is brought from Tarshish, and gold from Uphaz, the work of the workman and of the hands of the founder. Blue and purple is their clothing, they are all the work of cunning men. But the Lord is the true God, He is the living God, and an everlasting King. At His wrath the earth shall tremble, and the nations shall not be able to abide His indignation. Thus shall ye say unto them, the gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under these heavens. He hath made the earth by His power, He hath established the world by His wisdom, and hath stretched out the heavens by His discretion. When He uttereth His voice, there is a multitude of waters in the heavens, and He causeth the vapors to ascend from the ends of the earth. He maketh lightnings with rain, and bringeth forth the wind out of His treasures. Every man is brutish in his knowledge, every founder is confounded by the graven image. For his molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity and the work of errors in the time of their visitation. They shall perish. The portion of Jacob is not like them, for he is the farmer of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Gather up thy wares out of the land, O inhabitant of the fortress. For thus saith the Lord, Behold, I will slinge out the inhabitants of the land at this once, and will distress them, that they may find it so. Woe is me for my hurt, my wound is grievous. But I said, Truly, this is a grief, and I must bear it. My tabernacle is spoiled, and all my cords are broken. My children are gone forth of me, and they are not. There is none to stretch forth my tent any more, and to set up my curtains. For the pastors are become brutish, and have not served the Lord. Therefore they shall not prosper, and all their flocks shall be scattered. Behold, the noise of the bruit is come, and a great commotion out of the north country, to make the cities of Judah desolate, and a den of dragons. O Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not in man that walketh to direct his steps. O Lord, correct me, but with judgment, not in thine anger, lest thou bring me to nothing. Pour out thy fury upon the heathen that know thee not, and upon the families that call not on thy name. For they have eaten up Jacob, and devoured him, and consumed him, and have made his habitation desolate. यिर्मयाह की भविष्यवाणी 9 अध्याय 10 अध्याय पढ़ेंगे हम BSI बाइबल में से। यिर्मयाह 9 अध्याय 10 अध्याय। हम 9 अध्याय से शुरू करेंगे पहले वचन से। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई टिकाव मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी है, वे विश्वासघातियों का समाज है। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और देश में बलवंत तो हो गए, परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ाते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा न रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है, और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है,
इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान बेचने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड न दूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी नहीं सुनाई पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए हैं। मैं यरूशलेम को खंडहर बनाकर गिदड़ों का स्थान बनाऊंगा, और यहूदा के नगरों को ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई न बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता? और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया, और न मेरी बात मानी और न उसके अनुसार चले हैं, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसा उनके पुरखाओं ने उनको सिखलाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितर बितर करूंगा जिन्हें न तो वे न उनके पुरखा जानते थे, और जब तक उनका अंत न हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। यरूशलेम के लिए विलाप। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो। वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारे आंखों से आंसू बह चले और हमारे पलके जल बहाए। सियोन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए हैं। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसिनी को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों में से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। तू कहे, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलिया काटने वाले के पीछे पड़ी रहती है, और उनका कोई उठाने वाला न होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहितों के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अम्मोनियों, मोआबियों को, और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुंडा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित है और इस्राएल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। मूर्ति पूजा और सच्ची आराधना। 10 अध्याय पहले वचन से। यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों
की रीतियाँ तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुतले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती है और न कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है। तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन न डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं है, परंतु वे पशु सरीखे नीरे मूर्ख है। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काठ ही है। पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है और उफाज से सोना। वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैंगनी रंग के वस्त्र है। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरों की कारीगरी ही है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। स्तुति का गीत। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी के छोर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित है। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी है और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य है। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगी। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वह तो सब का सृजनहार है और इस्राएल उसकी निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। आने वाली दासता 17 वचन से आगे। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गठरी भूमि पर से उठा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रखकर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा, यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लुटा गया और सब रस्सियाँ टूट गई है। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं है। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण वे बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर पितर हो गई है। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गिदड़ों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा।
आपके अनुग्रह से जो समझना था हमारे अंदर तूने बिठा दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस समझ को बरकरार रख हमारे अंदर, नासरी यीशु के नाम में, आमीन आमीन। 2-year बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 6 चैप्टर 61 वर्स से 71 वर्स तक, 2 किंग्स 7 चैप्टर 8 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 61 वचन से 71 वचन तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय 8 अध्याय। हमारे व्यक्तिगत समय में हम इन पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ना है और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करने देना है। और ऐसा करते हुए जब हम जाएंगे 2 साल के अंत में, देखेंगे परमेश्वर के वचन से भरा हुआ इंसान होकर हम प्राप्त होंगे। ये होने के लिए परमेश्वर का आत्मा हम में मौजूद है और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा, तेरे वचनों को हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर और हमारे ईश्वरीय रचना में हमको ढल कर लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।